Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and you all are safe. So if you are new here, take a moment and subscribe to my channel. So I am giving you that moment right now. Done? So let's get started. So since everybody in this whole world is different, obviously so am I. So मेरी जो genre है, मेरा जो type है books का, that is historical, motivational and inspirational. तो जो आज की वीडियो में मेरी 4 books हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, which I really adore, are based on them, that is inspirational, motivational and historical. So the first book is Vichhoda, written by Harinder Sikka, who also wrote the book named Calling Samet, which is now a major motion movie named Razi. I'm sure you must have watched that movie or you must have heard that name. And if you haven't watched that movie, you must watch it because it's a great movie. No, I'm not sponsoring or something like that. I'm just saying it. So this book is basically about 1947 partition between India and Pakistan, the riots, the brutality all over the borders and all around the borders, in fact. So there was the woman named बीबी अमृत कौर. वो एक सिख फैमिली से बिलोंग करती थी जो कि पाकिस्तान में सेटल्ड थी. तो जब ये रायट्स हो रहे थे एंड एवरीथिंग, तो जो लोग थे पाकिस्तान के, वो सिख फैमिली को मारने जा रहे थे. दे वांटेड टू किल दैट फैमिली. सो दैट फैमिली डिसाइडेड दैट दे शुड किल देमसेल्व्स ऑन देयर ओन रादर दैन बीइंग किल्ड बाय एन एनिमी. So they killed themselves first. They killed their kids and then they killed themselves. So luckily, Bibi was still alive and a person named Said saved her. Said was Bibi's father's really good friend. So इस बुक में कैसे बीबी और साइद का इमोशनल बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है आगे जाके, कैसे बीबी साइद को अपना फादर बुलाने लग जाती है एक टाइम के बाद. देन बीबी gets married to a Pakistani man. She has 2 children. उसके बाद वो इंडिया जाती है बिकॉज पाकिस्तान में काफ़ी सारे सिचुएशंस ऐसे हो जाते हैं. वो आई वोंट टेल राइट नाउ, अदरवाइज वो स्पॉइलर हो जाएगा. तो जब आप ये बुक परचेज करोगे तब आप ये पढ़ सकते हो. तो वो इंडिया जाती है. देन शी गोज टू कश्मीर एंड हाउ शी फेल इन लव विद द सोल्जर एंड शी फाउंड्स हर लव ऑफ द लाइफ देयर. देन शी इज़ इन कश्मीर. वहाँ पे उसके साथ और सिचुएशंस होती हैं, ब्रूटल सिचुएशंस भी होती हैं. एंड देन व्हेन शी गेट्स मैरिड टू दैट सोल्जर, वो न्यू दिल्ली शिफ्ट हो जाती है. एंड उसके बाद वो एक ऐसी लाइफ लिव करती है विच शी एक्चुअली डिजर्व्ड टू लिव. उसके बाद जब वो मरने वाली होती है, जब वो डेथ उसकी होने वाली होती है, तो वो वापस पाकिस्तान आती है अपने बच्चों से मिलने के लिए. एंड फिर वो, नहीं मैं एंडिंग नहीं बताऊंगी अदरवाइज वो भी स्पॉइलर हो जाएगा. सो दिस बुक इज़ एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग. इसमें ट्रेजिडीज़ ही ट्रेजिडीज़ हैं, मिस्ट्रीज ही मिस्ट्रीज हैं. तो ये बुक एक्चुअली में पढ़ने वाली बुक है यार. प्लीज़, अ मस्ट रीड बुक. हिस्टोरिकल, इंटरेस्टिंग, मिस्टीरियस, इंस्पिरेशनल, हर चीज़ का पैकेज है ये बुक. सो दिस बुक इज मस्ट रीड. यू मस्ट बाय दिस बुक, विछोड़ा. The next book is this 5 AM Club, written by Robin Sharma. So my father bought this book for me, thinking that after reading this book, I'll start waking up early in the morning. Because I was a very lazy person, yaar. But now I'm not. I've started waking up at 7 AM in the morning only and only after reading this amazing book. This is an amazing book and I really personally adore this book a lot. This is not only about waking up in the morning, it's a lot about motivational. कैसे हम सुबह जल्दी उठ के कितना सारा काम फिनिश कर सकते हैं. I never used to follow a routine, a pattern or a schedule. But after reading this book, I've made a schedule for myself and I really follow it. This book basically teaches you about the morning, the life in the morning, that how we should wake up in the morning because
मॉर्निंग में उठने के बाद हम कितने सारे काम कर सकते हैं यार, कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास पूरा दिन पड़ा होता है. बट वैसे यू नो इफ वी वेक अप एट 12 और इफ वी वेक अप इन द आफ्टरनून 1 or 2, आई यूज्ड टू डू दैट बट नाउ आई डोंट. सो आई हैव एक्चुअली नोटिस्ड मैनी चेंजेस इन माई सेल्फ. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यार सुबह उठने की. हम सुबह उठते हैं ना तो हमारा माइंड फोकस्ड रहता है पूरे दिन. दो बीच में थोड़ा थोड़ा दोपहर में नींद आएगी, सबको आएगी, मुझे भी आती है, मैं सो भी जाती हूँ थोड़ा थोड़ा टाइम. बट सुबह उठना बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा. ब्रेन शार्प रहता है उस टाइम पे, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं एंड हमें अंदर से रात को गिल्ट नहीं फील होगा कि हमारा पूरा दिन वेस्ट गया. So we should definitely start waking up in the morning, and this book, this is a must read book, guys, must read book. So the third book is The Rudest Book Ever, written by Shwetabh Gangwar. So by the title itself, yes, this book is rude. ये हमें kind बनना तो नहीं सिखाती, but ये हमें खुद से कैसे डील करना है ये सिखाती है. यू नो लाइफ में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशंस हमारे पास सामने आती है जिसमें हमें खुद के बारे में सोचना पड़ता है. बिकॉज इफ वी डोंट थिंक अबाउट आवरसेल्व्स एट दैट पर्टिकुलर टाइम देन वी विल बी completely destroyed. And who wants to destroy themselves? So we should think about ourselves sometimes, obviously. So in this book there are topics such as screw happiness, कि कैसे हम short term happiness के पीछे इतना भागते हैं कि हम वो एक satisfaction भूल जाते हैं जो कि हमें long term में मिलेगी. How people screw us sometimes, how we run after people, how we please others and not us, how we take care of others and not ourselves. This book has inspired me a lot and has actually dealt with me in my hard times. हमारी लाइफ में किसी ना किसी टाइम पे एक ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें कुछ एक मोटिवेशन चाहिए होता है. सो व्हेन आई यूज्ड टू फील लो कभी कभी, सो उस टाइम पे मैं कोटेशंस रीड करना प्रेफर करती थी जो कि मेरे उस स्टेट ऑफ माइंड को सूट करता होता था. आई वॉज नॉट अ बुक वॉर्म, आई एम स्टिल नॉट अ बुक वॉर्म, बट दीज kind of books will definitely convert me into a bookworm, to be very honest, because this book is love. I swear, this is a must read book, guys. Even if you feel low ever, you should buy this book. You can read it twice, thrice, because I have read it thrice and I still read it. अपनी लाइफ की सिचुएशन से मैं इसको कंपेयर करके इसमें जो भी है उसमें अपनी लाइफ की सिचुएशंस डालकर मैं इस बुक में इस राइटर की जगह जा करके मैं खुद को रिलेट करके ये बुक पढ़ती हूँ. एंड this has really helped me a lot in my life, and this has really changed me into a better person. So this book is a must read book. The last but not the least, the fourth book and the best one. आई नो मैं सारी बुक्स को बेस्ट बोल चुकी हूँ, बट है यार क्या करूँ. सो दिस बुक इज हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, रिटन बाय डेल कार्नेगी. So this book, I've ordered this book a month ago, but I've already read this book thoroughly because I couldn't wait to read this. It's that good. That's why. So this book has taught me a lot. मैंने एक previous video भी बनाई थी, how to deal with your problems. So वो जो भी वीडियो था, this book was behind that video. मैंने वो चीज़ इस बुक में से ही सीखी है. You know, इस बुक ने मुझे एक चीज़ सिखाई है कि लाइफ में तो यार प्रॉब्लम्स आएंगी जो मर्जी हो जाए, एंड वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. वी एक्चुअली कांट. सो हम क्या कर सकते हैं, दैट वी कैन थिंक अबाउट लाइफ एज अ स्टोरी, एज अ मूवी, एज अ फिल्म. ये हमारी मूवी है, इसी में हम डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है एंड एक्टर भी है हम इसी मूवी के, अपनी लाइफ के. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस, ओनली अस, कि हम इसको एक हिट मूवी बनाते हैं या एक फ्लॉप मूवी बनाते हैं. वरी करके कुछ नहीं होगा. हम अपने दिमाग में सिनेरियोज बनाते रहते हैं. वो सिचुएशन अभी आई भी नहीं है, बट स्टिल हम इतना ओवर थिंक करते हैं और दिमाग में वो सिनेरियोज बनते जाते हैं, एंड देन हम इतना स्ट्रेस हो जाते हैं. सो इस बुक में उसी के बारे में है कि वो स्ट्रेस हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे हम एक्चुअली में अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. रादर देन मेकिंग सिनेरियोज इन आवर ब्रेन्स, we should go out there and solve our problems after analyzing the facts.
जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है सब कुछ. सो ये बुक इज एक्चुअली अ मस्ट रीड बुक. सारी बुक्स मस्ट रीड है बिकॉज सब में बहुत ज़्यादा लाइफ लेसन्स सीखने को मिले हैं जो कि पूरी लाइफ काम आएंगे. एंड दिस बुक आई विल रीड इट अगेन. मैं सारी बुक्स को अपने से रिलेट करके पढ़ती हूँ एंड दिस बुक इज़ वेरी रिलेटेबल टू मी एंड आई एम श्योर कि आप सबकी लाइफ से ये बुक बहुत रिलेट करेगा. सो यू मस्ट बाय दिस बुक, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग. एंड वी शुड एक्चुअली स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बिकॉज एक ही लाइफ है ना यार. अब इसको अच्छा नहीं बनाया तो क्या बनाया. लेट्स मेक दिस ब्यूटिफुल मूवी अ हिट मूवी. सो दीज आर द 4 बुक्स जिनके बारे में हमने आज इस वीडियो में बात करी है एंड आई विल बी मेंशनिंग द नेम्स ऑफ दीज बुक्स इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल. और अगर गाइज आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी बुक्स हैं जो मुझे पढ़नी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा उनके नाम. मुझे बहुत अच्छा लगेगा वो बुक्स पढ़ के एंड आई डेफिनेटली ट्राई टू परचेज दोज बुक्स. और अगर आपको कोई भी क्वेरी है आज की वीडियो से रिलेटेड, जो भी मैंने आपको बुक्स के बारे में बताया है आज की वीडियो में, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप you like the video and don't forget to like, share and subscribe to my channel.